There is MTech in electronics with specialization in nuclear engineering. Munindra is a young and successful scientist at the prestigious Bhabha Atomic Research Center, BARC, Department of Atomic Energy. You may have heard of that. Now, since a while, he's been trying to get into the field of yoga. For various reasons, he's been trying, but he wasn't able to. Finally, it came to a point where last year, and this year he completed, May 2023, when he joined and successfully completed his YTTC course at IBM Vashi. And in the 46th batch, of course, he continued to shine through the academics at YTTC. His meritorious achievements at YTTC include 13 awards. Can you read that? Hold your breath. So he broke all the barriers and I think all the records and set a new bar for the next students. So you all have a nice, record to break. Now, the first rank he got was in the global batch, 46 YTTC global batch. He made it the first rank there. You can keep clapping. He was the highest in overall performance was the, he took the award there. Also got an award for the best written project, highest scores, the best written project. Highest in practical project, that's the PBW, and highest in the graded course practical, which also includes among the gender-wise we do. He also got the maximum scores in yogic science practical as well as theory. Usually the yogi here, Munindra, the name itself says it all, Lord of the Yogis. The highest also in the Shuddhi Kriyas, I think he's a Shuddhi Kriya specialist again. So Shuddhi Kriyas, Nauli, and also the Mayurasana, that was also a specialization. He really did very well there. 100% attendance was all that made it happen, and he got the maximum score also in summer course, and I happen to be having a witness of that. Give it up for Munindra. And if you thought that was not enough, that Munindra really thrives only in electronics and he does a lot of yoga, he uses his spare time to do what? Not only to fix some electronics items or whatever, but he also plays football, he's a great football player, representing his BARC team at various tournaments. So friends, give it up for Munindra Singh and learn what you can. Listen carefully. Over to Munindra Singh for briefing us on his project, Importance of Yoga and Sleep. It's yoga. I hope it was clearly heard by the global participants. सब मोह माया है सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्चुअली यू हैव टू थॉट इन दैट वे बट नॉट फॉर द प्रोजेक्ट ना प्रोजेक्ट के लिए ऐसा नहीं सोचना है कि सब मोह माया क्या करेंगे सो एग्जैक्टली लास्ट ईयर मैं वहाँ बैठा था पिलर के पास एंड आई वाज थिंकिंग और यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स हैं अंजू टपारिया वेंकटेशन सर सब लोग यहाँ पे थे वेंकटेशन सर इज फ्रॉम बीआरसी ओनली तो उन्होंने ऐसा बार सेट किया था कि मैं वहाँ बैठ के लग रहा था कि उन्होंने तो कर लिया हमसे होगा क्या सो एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन विल बी इन योर माइंड ऑल्सो कि हमसे होगा क्या इन लोगों ने तो कर लिया हमसे क्या हम कर पाएंगे या हमारा कोर्स थ्रू आउट द कोर्स वर्क परफॉर्मेंस कैसे रहेगी तो मेरे कुछ सजेशन हैं जो मुझे लगे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम आई लर्न फ्रॉम द टीचर्स और फ्रॉम द बैचमेट्स और अपने खुद के कुछ अनुभव सबको मिला के एक कोहेसिव वे में हमने कुछ एफर्ट लिए सो वही चीज़ों को जस्ट मैं दोहराना चाहूँगा दोज थिंग्स विल हेल्प यू इन प्रोजेक्ट इन पर्टिकुलर एंड इन YTTC कोर्स इन जनरल सो फर्स्ट थिंग इज अभी जैसे सर ने सिंकर सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया होगा एट दैट टाइम दिया था तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था टू द पॉइंट क्रिस्प एकदम तो उन पॉइंट्स को मेरा टच करने का कोई ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा उसमें सर ने बहुत ही अच्छे वे में एक प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए इंडेक्स font every detail minute detail was there and at the last one slide was there sir about the strong
कि strong when storm comes and you face the storm up front, you are never a same person again. When you go through it, you go through a lot of changes in you. If you are sincerely going through that storm, you are facing that storm. So I would suggest you consider your YTTC course as you are facing a storm. And अभी नहीं लग रहा होगा, एक्सकर्जन पास होने दीजिए, आपको लगेगा कि you are in between a storm. तो वो स्ट्रॉन्ग को आपको फेस करना है, बट कोई डिफिकल्टी नहीं है. ओनली वन थिंग सभी टीचर्स ने बताया था और वही चीज़ मैं बताना चाहूँगा. यू हैव टू बी डिसिप्लिन अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. और वो चीज़ मैंने सबसे पहले सीखी है दोस्तों, क्योंकि जॉब के साथ में, फैमिली के साथ में एंड ये फुल टाइम YTTC के साथ में एक बर्मुडा ट्रायंगल बनता है और उस ट्रायंगल के बीच में आप होते हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग की तरह आपको आभास दिला सकता है. कब दिला सकता है? जब आप व्यवस्थित नहीं हैं. अगर आप व्यवस्थित हैं तो मानिए आप इंजॉय करेंगे, एक एक्टिविटी को आप इंजॉय करेंगे. और अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड टू बी मोर डिसिप्लिन. और एक सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी ड्यूरिंग द लेक्चर कि आप परीक्षार्थी ना बने, विद्यार्थी बने. कुछ चीज़ सीखने के लिए कर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ये मार्क्स आज आए हैं, आज अवार्ड आए हैं, कल किसी और को आएंगे या कल तुम्हें कोई नाम याद नहीं रखने वाला. बट आपने योग को कितना जिया है, कितना अपने लाइफ में आत्मसात किया है. आप जिन चीज़ों को लेके पहले परेशान हो जाते थे, अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो वही सबसे बड़ा अवार्ड है. तो ये भाव रख के आप YTTC करें. अगेन ये YTTC के लिए नहीं है, प्रोजेक्ट के लिए है, बट इन जनरल ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम को लेके आप डिसिप्लिन रहें. टाइम को बहुत ही प्रीसियस, जब भी कोई काम कर रहे हैं, जस्ट बैक ऑफ द माइंड में एक बार ये जरूर सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसका किसी भी वे में, आइदर मेरे जॉब, मेरी फैमिली या YTTC में कुछ इसका यूज है या नहीं. अगर नहीं तो इमीडिएटली स्टॉप दैट प्रैक्टिस एंड कंस्ट्रक्टिव वे में आप अपने आप को शिफ्ट करें. सो बी अवेयर ऑफ योर टाइम फर्स्ट. तो ये आपको सबसे पहले देखना है. अगर आप यहाँ बैठे हैं, प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहे हैं, तो बी हियर इन दिस मोमेंट. वो बाहर जाऊँगा, दादर आया हूँ तो शॉपिंग करके जाता हूँ, वैसा नहीं करना है. सो बी इन दैट टाइम. तो टाइम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम की चीज़ है. फिर दूसरा, जैसा सर ने भी बताया होगा, आपको एक टाइमलाइन मिल गई होगी प्रोजेक्ट के लिए कि आपको कब कब कौन सा ये है, इंटरिम रिपोर्ट भी देनी होगी एंड देन वाइवा होगा. तो वेरी फर्स्ट डे यहाँ से आप जाने के बाद 7 दिन लीजिए, प्रोजेक्ट का टॉपिक जरूर सेलेक्ट कीजिए. टॉपिक ऐसा सेलेक्ट करिए, जैसे सना मैम ने भी बताया, सभी लोग यही बताने वाले, जो आपके क्लोजर टू योर हार्ट है, ऐसा टॉपिक लें. मेरा जैसे टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप एंड योग. तो स्लीप क्यों, ऐसा टॉपिक क्यों लिया? आयुर्वेद में कहा गया है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए त्रिस्तंभ है, आहार विहार निद्रा, या कई बार बोला जाता है कि आहार विहार ब्रह्मचर्य को भी ऐड करते हैं, या आहार विहार निद्रा इन जनरल आप समझे. तो क्या शास्त्रों में लिखा है आहार विहार निद्रा, तो चलो मैं निद्रा पे प्रोजेक्ट करूँ, ऐसा है? नहीं. एक्चुअली 2020 में आई लॉस्ट माई फादर एंड आफ्टर दैट इट वॉज सो difficult for me to get a sound sleep, and because of that I was struggling a lot at the office and then at the personal life also. So ऐसा टॉपिक चूज करिए जो आपने जिया हो, उसके अनुभव आपके पास हो. वो जब अनुभव होंगे ना, तो वो प्रोजेक्ट आपको बर्डन नहीं लगेगा. तो सिर्फ यही रीज़न नहीं था, उसके साथ साथ मैंने अभी ये भी देखा है कि आजकल के ज़माने में स्लीप का जो इम्पोर्टेंस होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. आप देखेंगे, आप खुद भी आप अनुभव कर पाएंगे. आप घर का सारा काम खत्म करने के बाद आपको लगता है आप फ्री हो गए, इट इज़ माई मी टाइम, चलो थोड़ा सा रील्स देखता हूँ. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट स्क्रोलिंग, यू लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम कि कितना समय निकल जाता है वैसे. एंड जो स्लीप को जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है. सो कहीं ना कहीं इसका पर्सनल रेलिवेंस था. इसके साथ साथ मैंने आसपास भी देखा है लोगों को, अरे वीकेंड है अब तो नाइट आउट वाला प्लान है, और इस तरह के जो थॉट प्रोसेस आ रही है लिमिटेड, तो वो आपको बोर नहीं लगेगा. नहीं तो जोश जोश में आपने एक टॉपिक सिलेक्ट किया और जस्ट 5 दिन में उसका एक पैरा लिखने के बाद जोश खत्म. तो वैसा नहीं, आपने पर्सनली उसके एक्सपीरियंसेस होना चाहिए. तो टॉपिक फर्स्ट एंड कमिट योरसेल्फ कि विद इन ए वीक आपका टॉपिक फिक्स्ड होगा ही होगा. ये आपको अपने साथ एक कमिटमेंट करना है. एंड नेवर आज टीचर की सर मैं क्या टॉपिक ले लूँ, टीचर इसमें कभी हेल्प नहीं कर सकते. आप टॉपिक बताएं, उस टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहें, डेफिनेटली टीचर इसमें हेल्प करेंगे. बट मैं क्या टॉपिक ले लूँ ये टीचर से ना डिस्कस करें, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है. आपका खुद का टॉपिक होना चाहिए, आपके खुद के जो आपको लगे, यू फील फॉर इट, ऐसा टॉपिक आपको लेना चाहिए.
तो टॉपिक हो गया, डिसिप्लिन एनीवे है, टॉपिक डिसाइड करें, 7 दिन के अंदर करें, फिर आप अपने पास एक पीसी में एक फोल्डर बनाएं और एक अपने पास एक रजिस्टर रखें एंड उससे रेलिवेंट जो भी मिलता है डॉक्यूमेंट स्टार्ट कलेक्टिंग, जस्ट स्टार्ट कलेक्टिंग। जो भी आपको जब फ्री टाइम मिला, आपने यू जस्ट गो थ्रू सम आर्टिकल और द रिसर्च पेपर, उन सभी के थ्रू जब आप जा रहे हैं, क्विकली उसको आप एक जगह इकट्ठा करते जाएंगे एंड प्रिपेयर ए मेंटल मैप ऑफ इट कि हाउ माई रिपोर्ट विल बी। अब जैसे मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि जिसमें आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, डिज़ाइन बेसिस रिपोर्ट्स होते हैं, कई अप्रूवल्स होते हैं, प्रिपेयर करने होते हैं, तो एक प्री कंडीशनिंग एक आइडिया रहता है कि रिपोर्ट कैसे, जिसको नहीं है वो भी जरूर ये करे, इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। क्योंकि रिपोर्ट बनाने के बाद आपको एक खुद को एक लगेगा कि हाँ दिस इज़ माई बुक, एक अपना एक अफेक्शन आता है, ये आपकी एक पब्लिकेशन, एक छोटी सी मेहनत है। और शायद ये आपको बाद में रियलाइज होगा जब YTTC खत्म हो जाता है एंड एट दैट टाइम यू होल्ड दैट बुक, तब आपको लगता है कि हाँ ये मैंने कितना अच्छा किया है, ये इसमें कंपाइल्ड है चीज़ें और बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और अगर रियली आपने वो टॉपिक पे अच्छे से कवर किया है, यू हैव द अथॉरिटी, इतना अच्छा अगर आपने किया है उस टॉपिक के ऊपर, आपकी अच्छी अथॉरिटी डेवलप हो जाती है, आप कभी भी उस पर डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। तो फोल्डर बनाइए, सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते रहिए, मेंटल मैप ऑफ एक प्रिपेयर करिए, इंडेक्स कैसा होगा, एब्स्ट्रैक्ट कैसा होगा रफली, और जहाँ जहाँ जिस टॉपिक को आप इजीली कर सकते हैं उसको तो इमीडिएटली फिनिश कर दीजिए, टाइप करके ही ऑलरेडी रख दीजिए। तो जितना जितना होता जाता है आप इमीडिएटली करिए। और टाइम में आप ये भी ध्यान देना कि फर्स्ट जब आपको इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करनी है, आप अपने आप से ये प्रॉमिस करिए कि उस समय मेरी फाइनल रिपोर्ट होगी। पूरा आप ये समझ के रखिए कि फाइनल है, जो भी मेजर माइनर चेंजेस होंगे वो लास्ट में होंगे, बट आप इंटरिम रिपोर्ट विल बी द फाइनल रिपोर्ट, इस तरीके से आप प्रिपेयर करें। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को करने का संकल्प लेते हैं और उसके पीछे अगर आप विकल्प ले लेते हैं ना, तो वो संकल्प धीमा पड़ जाता है। आपने सपोज संकल्प लिया कि अरे मैं तो ये रिपोर्ट कंप्लीट ही करूंगा, फिर आपने सोचा कि नहीं ये नहीं हुआ तो क्या होगा, 5 दिन बाद कर दूंगा। द मोमेंट यू थिंक कि संकल्प के पीछे आपने विकल्प दिया, एक ऑप्शन दिया, द मोमेंट आपका जो टुवर्ड जो डेडिकेशन से आप काम कर रहे हैं, आप देख लेना आपका वो कम हो जाता है। और स्पेशली मैंने कई बैचमेट्स में भी देखा है, एग्जाम्स आए, एग्जाम प्रिपेयर नहीं हुए हैं, स्पेशली फिजिकल एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, पोस्टपोन कर देते हैं। पोस्टपोन एकदम मन से उसको फॉलो करें। इन जनरल YTTC का कोर्स वर्क बहुत ही वेल प्लान, वेल थॉट ऑफ है, एवरीथिंग मेक सेंस एट द एंड। जब कंप्लीट करेंगे ना, 3 मिनट टॉक, लेसन, सभी चीज़ों का ना एक एक कन्वर्ज होते जाएंगी चीज़ें, आपको लगेगा रियली ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपने आप को देख पाएंगे कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरे अंदर। तो आप उन सभी चीज़ों को फॉलो करें, इंजॉय करें। अगर इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा और डिसिप्लिन हो, थोड़ा और व्यवस्थित हो अपनी पर्सनल लाइफ में, देख पाएंगे कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय द वे अभी पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा था, तो उसी का शायद ये लोकल एसोसिएटेड या सेंट्रल इफेक्ट है ये कि हिंदी में मैं अपने वक्तव्य को दिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।